हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 42 से क्लास 50 तक, जो कि सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन और पीए डिपार्टमेंटल एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूडेड दिया गया है। क्वेश्चन इज दैट पार्ट 1 की क्लास 42 से 50 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लास 42 आप देख सकते हो, an article insert for any sum not exceeding ₹500 will be delivered in the ordinary manner. An article insert for more than ₹500 will be delivered only at the post office window. यानी कि क्या बोल रहा है, इंसोर्ट आर्टिकल अगर है जो कि 500 से नीचे है तो वो ऑर्डिनरी मैनर से डिलीवरी होगा, और अगर आर्टिकल इंसोर्ट मोर देन 500 रुपीज है तो वो एकमात्र पोस्ट ऑफिस विंडो यानी कि पोस्ट ऑफिस के विंडो से ही डिलीवरी होगा। Intimation of arrival being sent by the post office to the addressee. Intimation of arrival being sent by the post office to the addressee. जो पार्सल आ गया है या फिर आपका आर्टिकल आ गया है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एड्रेसी के पास नोटिस भेजा जाएगा। The addressee of an insured article or his agent authorized in writing must sign in ink both the receipt and acknowledgement relating thereto unless the outward appearance of the cover gives rise to suspicion of tampering. यानी कि उस आर्टिकल इंसोर्ट आर्टिकल के साथ जो एक्नॉलेजमेंट एडी कार्ड आता है और जो रिसिप्ट है, मतलब पोस्टमैन जो साइन करवाते हैं वो एजेंट हो या फिर एड्रेसी हो, उसे अच्छी तरीके से सिग्नेचर करते हुए ही रिसीव करना है। इन सच केसेस ही शुड अरेंज टू ओपन द आर्टिकल एट द पोस्ट ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ द पोस्टमास्टर एंड टू हैव इट्स कंटेंट्स एंटर्ड इन एन इन्वेंटरी व्हिच विल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट एंड मस्ट बी साइंड बाय द एड्रेसी। अगर उसके मन में कोई डाउट आता है तो वो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर के सामने ही अपना आर्टिकल को खोल के देख सकता है कि मेरा ये आर्टिकल था और यही आर्टिकल आया है कंफर्मेशन के लिए। One copy of the signed inventory will be forwarded by the post office to the sender with unsigned acknowledgement attached to it. In case the addressee or his agent is not known to staff of the post office from which the insert article is to be delivered, the identification of the addressee or his agent by a person known to the post office staff or production of evidence which will establish his identity to the satisfaction of the postmaster will be necessary if so required by the delivering post office official. यानी कि एक साइन किया हुआ इन्वेंटरी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फॉरवर्ड किया जाएगा सेंडर के पास और एक अनसाइंड एक्नॉलेजमेंट अटैच टू उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट अटैच किया जाएगा। In case the addressee or his agent is not known to the staff of the post office from which the insert article is to be delivered, the identification of the addressee or his agent by a person known to the post office staff, production of evidence which will establish identity। यानी कि अगर एड्रेसी या फिर एजेंट कोई पोस्ट ऑफिस स्टाफ उसे नहीं पहचानता हो तो उसे कुछ अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना है जो कि पोस्ट ऑफिस के पास एज ए डॉक्यूमेंट के हिसाब से रखा जाएगा। Note 1. When an insert article issued for delivery is not accepted by the addressee, it will not be sent out a second time. An intimation of its arrival will be made over to him and the article will be delivered at the post office on presentation of the intimation with the receipt and acknowledgement duly signed। यानी कि अगर कभी कोई इंसोर्ट आर्टिकल डिलीवरी के लिए इशू होता है, इज नॉट एक्सेप्टेड, एड्रेसी एक्सेप्ट नहीं करता हो, इट विल नॉट बी सेंट आउट अ सेकंड टाइम, उसे फिर से इंटीमेशन रखते हुए फिर से सेकंड टाइम एड्रेसी के पास नहीं भेजा जाएगा। और if the addressee of an insert article after the intimation of its arrival has been delivered omits to take delivery of the article within the time specified in the intimation, it will be returned to the sender as refused। अगर इंटीमेशन देने के बाद भी वो लेने के लिए इनकार करता हो या फिर वो नहीं लेता है तो पोस्ट ऑफिस उसे अपने अंदर डिटेन करके नहीं रखेगा, उसे रिटर्न कर देगा और दिमाग के हिसाब से रिफ्यूज्ड बोलकर उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नोट 2, when the receipt and acknowledgement duly signed together with the intimation are presented by the addressee or his agent to the post office, he must place his signature on the intimation in the presence of the delivery assistant of the post office and surrender the intimation to the post office if delivery is taken। यानी कि जब रिसीप्ट और एक्नॉलेजमेंट ड्यूली साइन टुगेदर विद द इंटीमेशन आर प्रेजेंटेड बाय द एड्रेसी और हिज एजेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ही मस्ट प्लेस हिज सिग्नेचर ऑन द इंटीमेशन। जबकि इंटीमेशन वो एक्सेप्ट करता है तो उसमें उसे सिग्नेचर करना जरूरी है कि मैंने इंटीमेशन एक्सेप्ट किया है तो मैं ये आर्टिकल या फिर ये पार्सल में डिलीवरी लूंगा। ऐसा करते हुए उसे सिग्नेचर देते हुए सरेंडर करना है। क्लॉज 43 डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल्स। बीपी यानी कि वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स।
If the amount to be recovered on a value payable article exceeds ₹100, an intimation of its arrival will be sent by the office of destination to the addressee. अगर बीपी आर्टिकल के अमाउंट 100 से ज़्यादा होता है, बीपी आर्टिकल क्या है? बीपी आर्टिकल एक आर्टिकल होता है जो कि उसमें कुछ पैसा निर्धारित किया जाता है, वो कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भेजता है, उसमें पैसा कलेक्ट करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उनसे कुछ कमीशन लेता है और हमारे पोस्टमैन जो डिलीवरी करते हैं एड्रेसी से कुछ कमीशन एड्रेसी से जो पैसा लागू है उस पैसा को कलेक्ट करते हुए उस बीपी आर्टिकल को डिलीवरी किया जाता है। तो ये क्या बता रहा है? The amount to be recovered on a value payable article exceeds ₹100, an intimation of its arrival will be sent by the office of destination to the addressee. Such article will be delivered at the post office on payment of the amount entered in the form or receipt on the reverse of the intimation in cash and on presentation at the post office of the intimation with the receipt on the reverse duly signed. यानी कि अगर कोई बीपी आर्टिकल का पैसा 100 रुपये से ज़्यादा हो और तो उसका इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल और एड्रेसी के पास एक इंटीमेशन भेजा जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट। जैसे पेमेंट करता है तभी उस आर्टिकल को तो सच आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट। जैसा ही पेमेंट करता है तो वो आर्टिकल डिलीवर होता है। अमाउंट एंटर्ड इन द फॉर्म और रिसिप्ट ऑन द रिवर्स ऑफ द इंटीमेशन इन कैश एंड ऑन प्रेजेंटेशन एट द पोस्ट ऑफिस ऑफ द इंटीमेशन इन द रिसिप्ट ऑन द रिवर्स ड्यूली साइंड। कैश में ही पेमेंट एग्री होगा और उसे इंटीमेशन के ऑपोजिट साइड में सिग्नेचर कर लेना है। पॉइंट 2, इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन ए वैल्यू पेबल आर्टिकल डज नॉट एक्सीड 100, अगर एक बीपी आर्टिकल के ऊपर वैल्यू 100 से नीचे निर्धारित किया गया है, द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी or his agent authorized in writing by the postman at the addressee's residence on payment of the amount recoverable and on the addressee or his agent authorized in writing signing the receipt on the reverse of the intimation presented with the article. अगर 100 रुपया से नीचे हो तो इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट 3, इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन ए वैल्यू पेबल आर्टिकल एक्सीड्स ₹25, मतलब 25 रुपये से ज़्यादा अगर हो और 100 रुपये से नीचे एंड द डिलीवरी इज टू बी मेड टू द विलेज पोस्टमैन और एन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट डिलीवरी एजेंट, यानी कि कोई भी विलेज स्टाफ वो एमसी हो सकता है या फिर कोई भी स्टाफ डिलीवरी कर सकते हो, देन द आर्टिकल इज डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन सब क्लॉज 1. If the amount to be recovered on a value payable article be not below ₹20, 20 से नीचे ना हो यानी कि 20 से 25 तक, and the article is taken delivery of the counter of the post office, the amount may be paid either in cash or by check under the condition. तो ये था हमारे बीपी आर्टिकल डिलीवरी करने के नियम। नेक्स्ट क्लॉज 44 हम देखेंगे डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज ड्यू। कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया गया है, वैसा आर्टिकल को कैसा डील करना है, डिलीवरी कैसा करना है। आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी टू बी रिकवर्ड इज इन एक्सेस ऑफ ₹50 आर ऑर्डिनरली डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। पोस्ट ऑफिस विंडो माने कि पोस्ट ऑफिस के काउंटर से ही उसे डिलीवरी कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंसी एंड ऑल द पोस्ट ऑफिस विंडो and all first class head offices where this limit is fixed at ₹100. Such duty may be paid either in cash or by check. ₹100 कस्टम ड्यूटी फिक्स किया गया है तो मिनिमम वो पे करते हुए ही वो आर्टिकल डिलीवरी किया जाएगा। क्लॉज 45 डिलीवरी फी। स्मॉल पैकेट्स received from foreign countries are charged on delivery a delivery fee at the rate पार्ट 2 में ये दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 46 अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल्स एट नो डिलीवरी पोस्ट टाउन नॉन डिलीवरी पोस्ट टाउन ऑफिसर for the convenience of the public who are required to call at the post office for taking delivery of over value insured or BP articles as indicated in clause 42 and 43. Superintendents of post offices are authorized to empower no delivery town post offices to deliver such articles at the window even though they do not perform any delivery work. यानी कि पब्लिक के लिए ये बताया गया है अगर ओवर इन वैल्यू इंश्योर्ड है यानी कि जीपी आर्टिकल्स नेक्स्ट क्लॉज 47 पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। क्लॉज 46 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देख लेने से भी चलेगा।
Clause 47, payment of money orders. The payment of a money order will ordinarily be made at the address of the payee on his signing the money order and acknowledgement and returning them to the postman. The coupon should be retained by the payee. Payee मतलब जो अमाउंट जिसे अमाउंट दिया जा रहा है वो होता है पेई. If the money order is payable to a person who is not permanently residing within the jurisdiction of the office of payment or personally not known to the postmaster or any of his subordinates, the money order will be paid only on satisfactory proof of the identity of the claimant with the person named in the money order. अगर मनी ऑर्डर जिसे पेमेंट करना है वो परमानेंटली रिसाइड नहीं कर रहा है, बाहर से वो छोड़ दिया है वो जगह, उसे बताने के बाद वो आते हैं तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, या फिर वो किसी को बेचता है तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ लेते हुए ही मनी ऑर्डर को पेमेंट करना है. पॉइंट 3, स्पेशल अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल एट इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स बाय चेक और पोस्टल पे ऑर्डर और बाय बुक एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ फर्म्स, बिजनेस हाउसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज एटसेट्रा which receive a large number of money orders or where the amount of money orders payable to a single person exceeds ₹100. इसका मतलब होता है स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर पेमेंट के नियमों के अनुसार वो चेक मनी ऑर्डर चेक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो, पोस्टल पे ऑर्डर से भी पेमेंट हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस में ही ये प्रावधान रखा गया है. इन केस ऑफ फर्म्स, अगर कोई कंपनी के नाम पे मनी ऑर्डर है, कोई बिजनेस हाउसेस हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, तो वहाँ पे चेक के माध्यम से भी मनी ऑर्डर पेमेंट कर सकते हो. अगर और या फिर सिंगल इंडिविजुअल पर्सन जिसको ₹100 से ज़्यादा मनी ऑर्डर आया है, उसे भी आप चेक के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है. नोट, ए पेई कैन नॉट हैव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बोथ बाय चेक एंड बाय पोस्टल ऑर्डर. दोनों के माध्यम से ही पेमेंट नहीं किया जा सकता है, कोई भी एक माध्यम उसे यूज करना है. पॉइंट 4, a money order exceeding ₹500 is not normally paid by the village postman and the payment of such money order will be made at the window of the post office for which intimation will be sent to the village postman. तो अगर मनी ऑर्डर ₹500 से ज़्यादा आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कीजिएगा. अगर मनी ऑर्डर ₹500 से ज़्यादा आता है तो वो विलेज पोस्टमैन के से डिलीवरी नहीं होगा, वो विंडो डिलीवरी होगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस के काउंटर से. तो उसके लिए विलेज पोस्टमैन उस एड्रेसी उस पेई को एक बार इंटीमेशन दे सकता है. नोट, इन सर्टेन केसेस मनी ऑर्डर्स अप टू ₹2000 आर पेड बाय द विलेज पोस्टमैन. कुछ पर्टिकुलर केसेस में मनी ऑर्डर 2000 तक विलेज पोस्टमैन पे कर सकता है, वो एक्सेप्शनल केस है. क्लॉज 48, ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट्स. Postman and other delivery agents are forbidden to deliver any article on which any sum of money is due to the post office. अगर कोई भी आर्टिकल वो प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज हो या फिर प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज के तहत और कोई भी आर्टिकल में पेमेंट अधूरा है या फिर नहीं किया गया है या फिर कम है या फिर कुछ भी घाटती है, तो उसे डिलीवरी नहीं किया जाएगा. Whether on account of postage, customs duty or any other account without receiving immediate payment of the amount due, or to deliver any register or insert letter or parcel without obtaining the signature of the addressee or his agent on the receipt and acknowledgement. They are also forbidden to deviate from their prescribed beats and cannot therefore be required to call again to receive payment of sums due. They are not bound to give change. अगर पेमेंट ड्यू है तो वो कलेक्ट करना है, सिग्नेचर पहले लेना है और उसके बाद ही आर्टिकल को डिलीवर करना है. ऐसा ना हो कि आप पेमेंट ड्यू रखे हो और डिलीवर कर दिए हो कि वो आपका नज़दीकी इंसान है, कोई जान पहचान है, कल दे देगा, परसों दे देगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आप अगर काम करते हो तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही आपको ड्यूटी को निभाना है. क्लॉज 49, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एट पोस्ट ऑफिस विदाउट डिलीवरी एजेंट. आर्टिकल को डिलीवरी कैसा करना है जहाँ पे कोई एजेंट नहीं है. In case of small post offices in the rural areas, meaning branch offices, where a separate postman or delivery agent is not attached to the post office, the postmaster will make arrangements to deliver the unregistered article on his responsibility and deliver the registered articles and insert articles and pay money orders at the post office by sending for the addressees and payees. ऐसा बहुत सारे ग्रामीण पोस्ट ऑफिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे पोस्टमैन या फिर मेल डिलीवरर
को अपॉइंट नहीं किया गया है, तो वहाँ पे अगर कोई मनी ऑर्डर आता है, कोई अनरजिस्टर्ड लेटर आता है, कोई पैकेट आता है, तो उसे ब्रांच पोस्ट मास्टर को दायित्व लेते हुए एड्रेसी के पास पहुंचाना है। नेक्स्ट क्लॉज 50, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स। द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू टू द पोस्ट ऑफिस। एड्रेसी के पास जो आर्टिकल आता है वो बाउंड नहीं है, अगर वो चाहे तो वो नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है। If he does not want to take delivery of it, in this case the word refused will be written by the postman across the cover. तो in this case refused लिखते हुए उस आर्टिकल को रिटर्न कर देना है। तो गाइज ये था हमारा क्लॉज 42 से 50 तक की डिस्कशन। ये पोस्टमैन और पीए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वाला वीडियो हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसी क्लास 35 से 50 के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हमने कलेक्ट किए हैं और प्रिपेयर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम